بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران مکرم، مجھے کوئی 1991 سے اس فکر سے متعلق ہونے کا موقع ملا ہے۔ کم و بیش 30-32 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے استاذ کے ساتھ شاید کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جو ان کے ساتھ تعلق میں، ان کے فکر کے ساتھ تعلق میں، ان کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کے بغیر گزارا ہوگا۔ اور اسی طرح شاید ہی کوئی ان کا اس دوران میں جو ادارہ بنا ہے وہ الانصار المسلمون کے نام سے ہو، وہ المورد کے نام سے ہو، وہ دانش سرا کے نام سے ہو، اسی طرح ان کے متفقین کے یا ان سے متاثر افراد نے جو مختلف جگہوں پر بعض ادارے بنائے، مثال کے طور پر UK میں میزان کے نام سے، اور اس طرح بعض دوسری جگہوں پر جو ادارے بنائے، ان سے بھی میرا ایک پہلو سے تعلق رہا ہے۔ تو اس پورے زمانے میں ایک تسلسل ہے جو میں اس تحریک کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ اس تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے یا میں نے بہت وقت گزارا ہے اس ادارے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل میں ایک سن رسیدگی ہے، ایک عمر رسیدگی ہے جو اس کام کے ساتھ گزری ہے، اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ایک ضعف ہے، کمزوری ہے جو اتنا لمبا عرصہ وقت گزارنے کے ساتھ انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن آج ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ ایک طرح سے مسلسل ہے پچھلے 1-2 سال سے۔ ابھی میں نے جو ہمارے صدر محترم ہیں جناب مکرم عزیز صاحب، ان کی گفتگو کو سنا ہے، اس کے بعد فرحان سید صاحب کی دلپذیر تقریر سنی ہے۔ بہت دھیمے انداز میں انہوں نے اپنی جو کارہائے نمایاں جس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد حسن صاحب نے ایک ولولہ پیدا کیا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو میری اس وقت کیفیت ہے وہ کیفیت یہی ہے، یہاں کے حوالے سے بھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ پوری اس تحریک کے حوالے سے بھی، کہ ایک ولولائے تازہ دیا تم نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ تو ایک نیا ولولہ، یعنی اس ایکسپیرینس کو آپ میرے پیچھے سے دیکھیے، اور اس عمر کو بھی دیکھیے جس میں میں کھڑا ہوا ہوں، اور ان تجربات کو بھی دیکھیے جو میں نے مختلف اداروں کے ساتھ اپنی زندگی میں گزارے ہیں، استاذ کے زیر نظر جو ادارے کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ادارے نے ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی ہے ہمارے اندر، ہم لوگوں کے اندر۔ تو اس کے لیے ایک طرح سے جو ہماری باقی زندگی بچی ہے اس میں پوری کوشش کریں گے، لیکن آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اصل میں اس ادارے کو وہیں سے زندہ کیا ہے جہاں سے 1983 سے استاذ گرامی نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو میں نے اس پچھلے 2 سالہ عرصے میں، یہ میں خاص طور پر، ابھی حسن صاحب نے بھی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے، اور ہم تحریک کے ایک تسلسل کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ زندگی کی روشنی جو آپ کو دیکھ کر میسر آئی ہے، اور یہ پچھلے 1-2 سال کی کارکردگی جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں، یعنی میں بے شمار چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ وابستہ تھا ابھی پچھلے 2 سال سے، بے شمار چیزیں ہیں جو آج مجھے معلوم ہوئی ہیں، اس سے پہلے میں ان سے واقف ہی نہیں تھا۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ چند چیزیں جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پر اس پچھلے 2 سالہ عرصے میں محسوس کی، اور جس کو میں احیاء سمجھتا ہوں، ایک نئی زندگی سمجھتا ہوں جو آپ کے ادارے نے ہم سب کو دی ہے، اس فکر کو دی ہے، اس تحریک کو دی ہے۔ وہ ایک بات تو ہمارے حسن صاحب نے جہاں سے ختم کی ہے وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، استاذ کا حوالہ بھی دیا کہ یہ ادارہ کس بنیاد پر قائم ہوا ہے، اس ادارے کو کن بنیادوں پر آپ نے کھڑا کیا ہے، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اس ادارے کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا ہے جو خدا تعالیٰ نے ایک طرح سے حکم دیا ہے۔
اللہ ताला का हुक्म सूरह तौबा में, सूरह तौबा की आयत 122 में बयान हुआ है, उसकी बेस पर आपने इस इदारे को कायम किया है। और वो हुक्म ये है कि ये तो मुमकिन नहीं था कि सब मुसलमान निकलते, लेकिन ऐसा क्यों ना हुआ कि उनमें से कुछ लोग निकलते और निकल के दीन में बसीरत पैदा करते, यानी दीन का इल्म हासिल करते, इल्म को सीखते, और उसके बाद जब अपनी कौम की तरफ लौटते, लोगों की तरफ लौटते, तो उन तक उस इल्म का इबलाग करते, उसको पहुंचाते। तो ये वो बेस है या ये वो इदारा है। इसको उस्ताद ग्रामी ने, अगर आपने पढ़ना हो उस जगह को, उलमा की दावत के उन्वान से बयान किया है। यानी जो हमारी दावत है, जिस के हवाले से हम इसको अलमौरिद कहते हैं, गामिदी सेंटर कहते हैं, इस दावत को अगर हकीकत के लिहाज से देखा जाए तो जिसको हसन साहब ने बयान किया वो उलमा की दावत है। तो आप जिस काम का बीड़ा उठाकर खड़े हुए हैं, जिस काम को लेकर खड़े हुए हैं, वो उलमा की दावत का काम है, जैसा कि इस आयत में बयान हुआ, और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में एक तरह से ये काम आप लोग अंजाम दे रहे हैं। तो ये वो जगह है जिसका इदराक आपके अंदर मौजूद है, जिसका शऊर आपके अंदर मौजूद है, और आपके एक एक लफ्ज़ से, अभी आपने जो गुफ्तगू की, मुकर्रम भाई ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू बता रही है कि इनके शऊर के अंदर, इनकी एक तरह से पूरे अमल के अंदर, पूरे रवैये के अंदर, पूरी थिंकिंग के अंदर वो चीज़ सरायद किए हुए है। यही मामला हसन हमारे फरहान भाई की बात का है, यही मामला हसन साहब का है। और इसको एक मिसाल से भी समझ लीजिए। हसन साहब ने जो बात की थी उसी को आगे बढ़ाता हूँ। मिसाल ये है कि जैसे हम, यानी वो उस आयत को मैं एक मिसाल से अर्ज़ करता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारी रियासत ये कहे कि हम इस मुल्क में क्या ऐसा क्यों नहीं होता कि कुछ लोग खड़े हों, उठें और उठ के तिब की तालीम हासिल करें, मेडिकल की तालीम हासिल करें, और उसके बाद दुखी इंसानियत की खिदमत करें। तो ये तमसील या ये बात इस बात को वाज़े करती है कि असल में जो काम करना है वो काम उस डॉक्टर ने करना है, उस मसले से मुतल्लिक सारी चीज़ों को जानने वाला वो डॉक्टर है। बाकी सब लोग जो हैं, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस डॉक्टर के काम के लिए कायम किया गया है। तो इसका इदराक, यानी जितना शऊर मैंने इस इदारे के लोगों में देखा है, बहुत कम मैंने अपने इदारे के इब्तदाई लोगों में ज़रूर देखा था, लेकिन आपके यहाँ ये शऊर जिस सतह पर पहुँच चुका है, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, उस्ताद का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और आपने इसको एक तरह से मुजस्सम शक्ल दे दी है। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की आपके हवाले से, या इस इदारे के ख़ास तौर पर माहौल के हवाले से, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ आगे भी चलेगी, वो ये चीज़ है कि आपने इस इदारे को, जैसे आज भी जो गुफ्तगू हुई है, ये कोई बिज़नेस ओरिएंटेड इदारा नहीं। अगर मैं बिज़नेस उस मानों में नहीं बोल रहा, कमर्शियल वालों में नहीं बोल रहा, लेकिन दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ख़ास बिज़नेस माइंड के साथ अपने मामलात को लेकर चल रही होती हैं। लेकिन आप कहाँ से बिहेव कर रहे हैं? आप खालिस दावत की जगह से बिहेव कर रहे हैं। यानी जैसे हमारा ये काम है या हमारी ये ज़िम्मेदारी है, या हम इस जज्बे में या इस एहसास में खड़े हुए हैं कि हम अपनी माजरत को अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश करना चाहते हैं। हमारा मामला अपने परवरदिगार के साथ है। हम अगर लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, या जो कुछ भी तहकीक पेश करते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम परवरदिगार के हुजूर अपनी माजरत पेश कर सकें। और आपका क्या मामला होता है? आपका भी यही मामला होता है कि आप किसी दुनियावी खुशनुदी के लिए नहीं, हमारी खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए इस काम को अंजाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने इसकी जो डायमेंशन या इसके अंदर जो आपने वैल्यूज़, जो चीज़ें आपने इसके अंदर डेवलप की हैं, वो यहाँ से डेवलप की हैं कि इसको दावत के रुख पर कायम रखा है। और ये इसके आइन में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो आइन जो आपके चेहरों से बोलता है, आपके आज़ा के अंदर से नज़र आता है, जो आपके आमाल से झलकता है, वो बताता है कि आप असल में इस इदारे को एक दावत, एक तहरीक बनाना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपके यहाँ मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, और इसके लिए भी आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तीसरी चीज़ जो मैं ये महसूस करता हूँ कि आपने जिस चीज़ का इदराक है, आप लोगों को जिस चीज़ का शऊर है, और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि आपको ये मालूम है कि ये तहरीक क्या है या ये काम क्या है।
आप जानते हैं कि ये कोई कदीम काम नहीं है, ये एक नया काम है। यानी कम अज़ कम सोसाइटी के हवाले से, दुनिया के हवाले से हमारे फ़िक्र की हैसियत एक नए फ़िक्र की है, एक नई बात की है। इस नई बात का इदराक, यानी जो काम को लेकर चलने वाले लोग हैं उनको इसका इदराक होना चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा निकलता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ आपको अपनी फैमिली के अंदर फेस करनी पड़ती है, अपने बच्चों के अंदर, अपने वालिदैन के अंदर, अपने अहबाब के अंदर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपकी मुखालफतें, आपके अनाद, आपके साथ दोस्तों की जो गैप्स हैं वो इसके नतीजे में पैदा होते हैं कि आप किन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि वाक़या ये है जिससे आप वाकिफ़ हैं कि ये वो फ़िक्र है जो सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे से पेश किया जा रहा है। उसमें सब लोग, जो खा सुन्नी होगा, खा शिया होगा, खा देवबंदी होगा, खा बरेलवी होगा, अहले हदीस होगा, हर शख्स जो है वो अपने अपने मामलात में एक दूसरे से इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ पर उनका इत्तफ़ाक़ होगा। वो इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ होगा कि गामिदी साहब का जो फ़िक्र है वो दुरुस्त नहीं है। तो इस चीज़ को फ़ेस करके, यानी इस सिचुएशन को फ़ेस करके आप अपनी फैमिली के अंदर भी खड़े होते हैं, आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी खड़े होते हैं, और फिर इस दावत को एक तरह से फ्रंट पर लेकर आप चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीसरा जो शऊरी पहलू है, इसकी भी आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इस चीज़ को महसूस किया। आप जानते हैं कि आप किस काम को लेकर चल रहे हैं, ये आपके अंदर इसका एहसास भी है और आपके अंदर इसका इदराक भी है। एक और चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, वो जिसको आपने आपके ख़ास तौर पर कामों से अंदाज़ा होता है कि आपको इस अमर का पूरी तरह अंदाज़ा है कि ये काम अपने तसलसल में किस मरहले में आकर खड़ा हुआ है। यानी मरहला अव्वल जिसको हम कह सकते हैं, अगर मदरसा फ़राही की मैं बात करूं तो मदरसा अव्वल वही है कि जहां से, जिसका आपने भी जिक्र किया कि इमाम हमीदुद्दीन फ़राही से इसका आगाज़ होता है। उन्होंने एक तरह से उसूल दिए, फिर उनमें कंट्रीब्यूट किया मौलाना इस्लाही साहब ने, और उसके बाद उस्ताद के काम हमारे सामने आता है। तो ये एक चेन है। इस चेन में जब उस्ताद ने उस सारे काम को, अपनी पिछली चीज़ को एक तरह से बैक पर रखते हुए पाया तकमील तक पहुंचा दिया है, यानी कह सकते हैं हम कि जो भी काम था इस फ़िक्र के हवाले से, वो इब्तदा से इंतहा तक एक मुजस्सम मशहूद शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। यानी अगर हम ये कहना चाहें या कोई हमसे ये पूछे कि मदरसा फ़राही क्या है या फ़िक्र गामदी क्या है, ख़ास तौर पर पूरे निज़ाम के हवाले से अगर पूछना चाहे, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 किताबें उसके हाथ में पकड़ाएंगे, ये लीजिए अलबयान, ये लीजिए मीज़ान, ये है फ़िक्र फ़राही, ये है मदरसा फ़राही। तो ये वाक़या हो चुका है, इससे पहले ये वाक़या नहीं हुआ था। तो चूँकि ये वाक़या हो चुका है, तो अब आपको इदराक है कि अब ये वाक़या हो चुका है। इसके बाद अगला वाक़या अब है, यानी अगला मरहला क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन होनी है, इसकी तशरीह होनी है, इसके जो तकाबली मुताले के मज़ामीन लिखे जाने हैं, इस पर बेशुमार इसके तराजुम होने हैं। तो वो मरहला, अब आप उस मरहले का इदराक करते हैं, उसको दुनिया तक पहुँचाना है, उसके लिए क्या क्या पैटर्न इख्तियार करने चाहिए। तो ये सारी जो प्रेजेंटेशन अभी मैंने देखी है, वो असल में इस बात का इजहार करती है कि आपको उस मरहले का पूरी तरह अंदाज़ा है। जैसे आप स्कॉलर्स को और बाकी लोगों को अपने साथ वाबस्ता कर रहे हैं, वो भी इस बात का सबूत है कि आप किन किन कामों के लिए किन किन लोगों को किस तरीके से वाबस्ता कर रहे हैं और क्या क्या असाइनमेंट्स हैं वो ले रहे हैं। आखिरी चीज़ जो मैं इसमें जाते जाते ख़ात्मा कलाम के तौर पर अर्ज़ कर दूं कि आपने जो इस तहरीक को जैसे दावत बनाया है, बल्कि मैं कहूँ कि ये इदारा, इसको एक इदारे के तौर पर तो आपने बनाया ही है, लेकिन ये इदारा नहीं है। आपके वजूद से, आपके आमाल से, आपके कामों से वाज़ेह होता है कि ये मूवमेंट है, ये तहरीक है। आपको इसका अंदाज़ा है कि ये तहरीक है, यानी इसके इदाराती मामला तो अपनी जगह मौजूद ही हैं, लेकिन अपनी रूह के लिहाज से, अपनी हकीकत के लिहाज से ये एक तहरीक है। और आप जानते हैं कि तहरीक और इदारे में फ़र्क क्या होता है। यानी इदारे में इंफ्रास्ट्रक्चर असल होता है, जबकि तहरीक में इंसान, अफराद असल होते हैं। इसका इदराक आपको है, यानी आपके नज़दीक इंसान, काम करने वाले लोग वो अहमियत इख्तियार करते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि जो इदारा है या इस नौइयत का काम होता है, जो बेशुमार इदारे दुनिया में काम करते हैं, NGOs हैं और दूसरे भी हैं, वो असल में दिमागों को, जहनों को मसहूर करते हैं।
آپ لوگوں نے جو ادارہ یا جو سٹرکچر یا جو تحریک قائم کی ہے وہ اصل میں دلوں کو تسخیر کرتی ہے، انسان کی اذہان کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں بھی اترتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، جو بات بھی کر رہے ہیں، جو دین بھی پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی نیت مخلص ہے، آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، آپ کے اندر للہیت پائی جاتی ہے، آپ کے اندر خدا کا خوف پایا جاتا ہے، آپ خدا کے لیے جنت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی تسلسل کے ساتھ انہی چیزوں کو، جن چیزوں کو آپ نے ملحوظ رکھا ہوا ہے اور پچھلے 8-10 سال سے مستقل ان پر کاربند ہیں اور لے کر چل رہے ہیں، اسی طرح چلتے رہے تو شعر میں عرض کر دیتا ہوں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بہت شکریہ۔